अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद पेटला ब्रुच मैटरनिटी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन के इंसदाद जल्द पता लगाने से मुतालिक प्रोग्राम। वजीर सेहत हरीश राव की शिरकत। कहा, अस्पतालों में जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफेसरों के 1400 ओहदों को किया जाएगा पूर्ण। तेलंगाना हुकूमत सरकारी अराजी के फरोख्त के जरिए हासिल करेगी आमदनी। हमडा के तहत 39 अराजियात फरोख्त के लिए दस्तयाब करवाई गई। याकुतपुरा रुकन असम्बली पाशा खादरी ने किया IS सदन प्रेस कॉलोनी का दौरा। कम्युनिटी हॉल के जारी तरक्याती कामों और कंटी वेलगू कैंप का किया मुआयना। GHMC कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 6 महीने से जेरे इल्तिवा बिलों को फौरी जारी करने का मुतालबा। कांग्रेस की वरंगल में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। गाजीपेट दरगाह में चादर गुल पेश करने के बाद सदर रेवंत रेड्डी ने किया यात्रा का आगाज। हैदराबाद में जाली करेंसी नोट्स का रैकेट बेनकाब। 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। 27 लाख रुपए की फेक करेंसी नोट्स जब्त। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने ऐलान किया है कि रियासत में जल्दी ही सरकारी अस्पतालों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 1400 ओहदों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हुकूमत सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर हरीश राव ने हैदराबाद के पेटला ब्रुच मैटरनिटी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन के इंसदाद जल्द पता लगाने के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने ज़्यादा पेचीदा मामलात से निमटने के लिए 2 नए मल्टी स्पेशलिटी MCH अस्पतालों के क़याम का फ़ैसला किया है। మనం ఇంకా కూడా తగ్గించి కేరళను కూడా దాటవేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో రావాలి అంటే ఒక టీం వర్క్ కావాలి. ఇట్స్ నాట్ ఒక గవర్నమెంట్ ఒకటి పని చేస్తే సరిపోతుంది లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒకటేస్తే సరిపోతుంది కాదు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి, డాక్టర్స్ మోటివేట్ కావాలి, స్టాఫ్ నర్సెస్ మోటివేట్ కావాలి, మరి కింద ఉండే పారామెడికల్ మన ఆశాలు ఏఎన్ఎంలు కూడా బాగా పనిచేయాలి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్లింక్డ్ ప్రోగ్రామ్. మోర్టాలిటీస్ ఎందుకు జరుగుతూ ఉన్నాయి 4-5 రకాలుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. రిమోట్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో రహదారులు లేక లాస్ట్ మినిట్ వరకు వాళ్ళు హాస్పిటల్కి రాక కొంచెం లేట్గా ఆసుపత్రికి రావడం వల్ల అప్పుడప్పుడు కొన్ని మరణాలు మధ్యలోనే దారి మధ్యలో జరిగేటువంటివి వెరీ లో అనుకోండి అక్కడక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి. దానికి మనం ఏం చెప్పాం, ఆశాను ఏఎన్ఎంను మనం ఏం చెప్పామంటే మీరు ఒకవేళ క్రిటికల్ పేషెంట్ అంటే షీ సఫరింగ్ విత్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ షుగర్ బీ వారం ముందే మీరు వారిని తీసుకురండి అని చెప్పారు. అందుకే ఉట్నూరులో కొన్ని ఆసుపత్రుల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే బర్త్ వెయిటింగ్ రూమ్స్ అని కూడా కట్టాము. భద్రాచలంలో, కొత్తగూడెంలో, ఉట్నూరులో, ఆదిలాబాద్లో అవసరమైతే 10 రోజుల ముందు పేషెంట్ అటెండెంట్ మన దగ్గరే పెట్టుకొని భోజనం పెట్టి అటెండెంట్ కూడా భోజనం పెట్టి మన మానిటరింగ్ లో సిస్టమ్ లో పెట్టుకుంటే ఆ ఇబ్బంది రాకుండా ఉంటుందని బర్త్ వెయిటింగ్ రూమ్స్ కూడా పెట్టి మనం మానిటర్ చేస్తాం. సో అక్కడ రోల్ ఆఫ్ ప్రైమరీ హెల్త్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆశా కానీ ఏఎన్ఎం కానీ దట్ BHC డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ప్రాపర్గా రికగ్నైజ్ చేయాలి. సో వారికి ANC చెకప్ వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ యాంటీనెంటల్ చెకప్, థర్డ్ యాంటీనెంటల్ చెకప్లో దే షుడ్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ కెన్ గో ఏ నార్మల్ డెలివరీ ఆర్ వాళ్ళు ఏదైనా అప్గ్రేడెడ్ ఫెసిలిటీకి వెళ్ళాలా, డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్లో, టీచింగ్ హాస్పిటల్లో, లేదా మన నీలోఫర్కో, బేట్ల కూర్చుకో, ఇంకా అప్గ్రేడెడ్ హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీ సర్వీసెస్ ఏమైనా అవసరం ఉన్నాయా అనేటువంటిది ANC చెకప్స్ మనం ప్రాపర్గా గవర్నమెంట్లో చేయగలిగితే మనము ప్రాపర్గా పేషెంట్ను గైడ్ చేయగలుగుతాం. ఆవిడ యొక్క బర్త్ ప్లాన్ను డాక్టర్ కరెక్ట్గా ఎప్పుడు డిసైడ్ చేయాలి అంటే అది BHCలో డిసైడ్ చేయాలి. కానీ ఇంకా కూడా ఆ కోఆర్డినేషన్ 100% రావట్లేదని నా అభిప్రాయం. వచ్చాము నియర్ అప్ టు 70%, 80% వచ్చాము. స్టిల్ దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ 20 to 30%. ఆ బర్త్ ప్లాన్ అనేది BHC డాక్టర్ ఎఫెక్టివ్గా చేయగలిగితే చాలా బాగా జరుగుతుంది.
तेलंगाना हुकूमत जो सरकारी अराजी की फ़रोख्त के जरिए आमदनी हासिल करने की उम्मीद रखती है, एक मरतबा फिर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में मुख्तलिफ मकामात पर अराजियात का हर्राज करेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हमडा मुख्तलिफ इलाक़ों में प्लॉट्स का हराज करेगी। हमडा की 39 अराजियात फ़रोख्त के लिए दस्तयाब करवाई गई हैं। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन तमिलनाडु में हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च प्रोग्राम के दौरान चलते हुए अचानक गिर पड़ी। ये वाक़या कल पेश आया, ताहम इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आज वायरल हो गया। इस वाक़े के साथ ही उनके सिक्योरिटी एहलकार चौकस हो गए, जिन्होंने गवर्नर को नीचे से उठने में मदद की। याकुतपुरा से मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज IS सदर्न डिवीजन प्रेस कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल के जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। बाद उन्होंने कंटी वैल्यू कैंप का दौरा करते हुए मुआयना किया और डॉक्टर से बात करते हुए कैंप की कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर रुकन असम्बली पाशा कादरी ने आवाम को मुफ्त आई कैंप से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। खजात किला गोलकुंडा मोहम्मद नगर के सदर खाजी के इंतकाल के बाद सदर खाजी के अहदे पर नई तकर्री को लेकर मसाइल देखे जा रहे हैं। आज मुख्तलिफ इलाक़ों के खाजियों पर मुश्तमिल एक वफ़द ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान से मुलाकात करते हुए मसाइल की एकसुई का मुतालबा किया। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुलाकात और मुतालबात की तफसीलात बताई। देखिए, आज हम लोग जो है तमाम तीनों ख़ज़ातें मुशीराबाद और फसलांसर और नवाब साहब कुंटा, ये गवर्नमेंट ख़ज़ात है जिसका सेंट्रल एक्ट 88 और सेक्शन 2 के तहत जिसका 2008 में तकर्रुर अमल में आया था, उसके बाद से ये आवाम के दरमियान में अपने ख़ज़ात के खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो अभी एक नया मसला ये है कि किला मोहम्मद नगर 12 महल के जो खादी थे आली जनाब यूसुफ़ुद्दीन असगर साहब मरहूम, तो उनका 3 दिन पहले इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद में वहाँ के नायबीन, उनके जो नायब काजी हज़रात है, वो हज़रात जो है निकाह खानी वग़ैरह के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो कि एज़ पर लॉ इलीगल है। और यही चीज़ हम यहाँ पर आए, वक्फ बोर्ड में CO साहब से मुलाकात हुई, चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई और उनको ये बतलाया गया और के काजी साहब का इंतकाल हुआ और उसके बाद में वहाँ पर उनके नायब काजी हज़रात जो है निकाह खानी वग़ैरह के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो कि एज़ पर लॉ इलीगल है। तो चेयरमैन साहब ने भी हमें तयक़्क़ुन दिया और हमने भी मेमोरेंडम पेश किया और चेयरमैन साहब ने ये तयक़्क़ुन दिया कि जब तक के कानूनी कार्रवाई के तहत उनके पास नए सदर काजी का तकर्रुर अमल में नहीं आएगा, वहाँ पर कोई भी नायब काजी निकाह खानी वग़ैरह के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर बतलाने के लिए चेयरमैन साहब और CO साहब के पास हाजिर हुए थे। और दूसरी बात, हम अवामुन्नास को ये इत्तला देना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा तकर्रुर गवर्नमेंट के तहत में हुआ था, गवर्नमेंट के ऑर्डर से हमारा तकर्रुर हुआ था, इसीलिए हम आवाम से अपील करते हैं कि हमारी खिदमत से इस्तेफ़ादा कीजिए। मुशीराबाद के सदर कादी है, उनके नायबीन हैं, और फसलांसर के सदर कादी साहब है, उनके नायबीन हैं, और नवाब साहब कुंटा के सदर कादी साहब हैं, उनके नायबीन हैं। इनकी खिदमत से आप इस्तेफ़ादा फरमाएँ। JHMC कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी M सुरेंद्र सिंह ने आज मीडिया से बात करते हुए 6 महीने से ज़ेरे इल्तिवा बिलों के बारे में बात की और इस वजह से छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। उन्होंने फौरी ज़ेरे इल्तिवा बिलों को जारी करने का हुकूमत और JHMC कमिश्नर से मुतालबा किया। JHMC कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से मैं सुरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। आज तक हमारे जो कामा ख़त्म हुए से तकरीबन 700 से 800 करोड़ रुपए तक कामा ख़त्म हुए से पिछले सितंबर से हमारे को पैसे आने का है। हम लोग कई रिप्रेजेंटेशन दिए से कमिश्नर साहब को, हमारे को पेमेंट नहीं देते हुए बाज़ाब्ता CRMP वालों को, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट दे रहे हैं। वो लोगों को आज काम करे तो वो लोगों को 10 दिन के अंदर पैसे आ जा रहे हैं। हम काम करके 1 साल तक हमारे को पैसे नहीं आ रहे। हमारा सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारा रिलीज़ कराए हमारे इसकी वजह से हम लोग ये प्रेस मीट कायम करें। इससे 700 करोड़ रुपए है, पिछले सितंबर से आज तक नहीं आए पैसे, 700 करोड़ रुपए है। तो आपका क्या हमारा पेमेंट जल्द से जल्द दीजिए और ज़्यादातर पूरे काम CRMP वालों को दे रहे हैं, तो उस सिलसिले में पूरे काम 5 लोगों को देने से ज़्यादा हमारे को हमारी रोज़गार की रोटी चली जाती है।
एक एक कॉन्ट्रैक्टर के पीछे 20 या 25 जने काम करते हैं, 20, 25, 30 जने काम करते हैं। वैसे हमारे पास 4000 कॉन्ट्रैक्टर्स है। 4000 कॉन्ट्रैक्टर का रोजगार ही चले आएगी अगर से वो 5 लोगों को देने से। हमारा निवेदन है, हमारा रिक्वेस्ट है, ये जीएचएमसी के ऊपर ये निर्भर है। निर्भर से कम से कम 40-50 साल से हम लोग यहीं पर काम कर रहे हैं। अगर से ये काम नहीं तो हमारी रोजगार की रोटी चलाएंगे, हमारी घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। सदर साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राशिद शरीफ ने मरकजी हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए मख्तस करदा बजट 2023 में कंजूसी से काम लेने पर दुख का इजहार किया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये प्रेस मीट बहुत अहम है। इस वजह से भी अहम है, जमीयतुल उलमा जो क़ायम हुआ है 1919 में, आज उसके प्रेसिडेंट है मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब है। ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो क़ायम हुआ है 1972 में, जिसके प्रेसिडेंट है मौलाना राबी हसन नदवी साहब। ये दोनों टीम जो है, दोनों जमातें जो है, हर एक मुसलमान पूरे हिंदुस्तान का एक फ़ख्र करता है ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयतुल उलमा पे। आज जितने भी मसले मसाइल है, जो बाबरी मस्जिद से लेके यूपी के हालात से लेके आसाम के हालात से लेके जितने भी आज मीडिया है जो मुसलमानों के खिलाफ जो डिबेट चलते रहते हैं, ये तमाम चीज़ें देखते हुए मैं मौलाना अरशद मदनी साहब से बात किया था, फ़ोन पे बात किया था, तो वो खुले अल्फाज में बोल दिए कि हमको सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम मज़हबी लोग हैं। तो ये सियासत से ताल्लुक़ साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैदराबाद में क़ायम हुआ है सिर्फ यही देखते हुए कि ये लोग तकरीबन मुसलमानों के जितने भी मसाइल हिंदुस्तान में हैं, चाहे बाबरी मस्जिद से लेके आज तक भी कोई मसले में ये लोग कामयाब हुए नहीं। चाहे वो कोर्ट का केस हो, बाबरी मस्जिद का, किसी भी कोई भी, परसों जो रामलीला मैदान में जो इतना बड़ा मसला हो गया, अल्लाह ओम एक है, उसका मसला हो गया, पूरे मुसलमान तकरीबन नाराज़ हो गए। ये लोगों को जितने भी जमातें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयतुल उलमा, ये देखने में आ रहा है कि एक तरीक़े से हर इशू में नज़रअंदाज करते हुए देख रहा हूँ मैं लोगों को। आज हमको हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाइए। हालात बहुत बदलने वाले हैं। 23 का इलेक्शन तेलंगाना में है, 24 का इलेक्शन पार्लियामेंट का है। हर तरीके से हथकंडे आजमाए जाएंगे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर जोगुर रमना ने कहा है कि हुकूमत मनाबस्ती मनबड़ी प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का इजाफा करते हुए तरक्याती काम अंजाम दे रही है। उन्होंने आज पीर को उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल चिलकुरी लक्ष्मी नगर का इफ्तिताह किया, जहां मनाबड़ी मनाबस्ती प्रोग्राम के तहत तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, ज़िला मोतमम ऑफिसर, मुतालिका वार्ड काउंसलर, स्कूल चेयरमैन मोहम्मद आसिफ, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज अहमद व दीगर मौजूद थे। सरकार का एक ही मसला है कि तेलंगाना आए तो अपने पैसे, अपने पानी और अपने नौजवान बच्चों को नौकरियां दे सकते और पढ़ाई के लिए अच्छा खर्च कर सकते। उनके मुख्यमंत्री साहब का
वादा था, उनका सोच भी था। वो अभी 9 साल में अपना मदरसों के लिए दो स्कूल्स के उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम सब स्कूलों को मना बस्ती मना बड़ी में लेके कईयों करोड़ों रुपए खर्च कर। इसका मतलब है कि है पढ़ाई ज़रूरी है, तालीम तो ज़रूरी है, तालीम से ही सब कुछ हो सकता है। तालीम नहीं रहने की वजह से मुसलमान SC ST तो सबसे पहले मुसलमान हर इसमें गरीब है और तालीम में भी बहुत कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी को ख़त्म करना बोले तो, वो गरीब को दूर ख़त्म करना बोले तो तालीम सबको मिलने के लिए सब सहूलत देने का सरकार का फ़र्ज़ है। अगर तालीम सब कुछ सब लोगों को अगर सहूलत दिया गया, ऑटोमेटिक अपना मुसलमान समाज हो दो, मुस्लिम कम्युनिटी हो दो, SC हो दो, ST हो दो, BC हो दो, हर कम्युनिटी तालीम से आगे बढ़ सकती है। उस वास्ते मुसलमानों के लिए स्पेशली, माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशली ये मनोबस्ती मनोबड़ी नहीं, रेजिडेंशियल स्कूल्स लगा के कम से कम 200 मेरे ख्याल से 78 स्कूल्स लगा के अभी माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए इधर आंगनवाड़ी लगाया। आंगनवाड़ी से लेके फिर प्राइमरी स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे और 4th क्लास कंप्लीट होने के बाद 4थी कंप्लीट। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने आज वरंगल में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का खाजीपेट दरगाह हजरत अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी देने के बाद आगाज किया। इस मौके पर सज्जादा नशीन गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने तमाम कांग्रेस कायदीन का इस्तकबाल किया और दरगाह शरीफ पर चादर गुल पेश करते हुए दुआ की। कांग्रेस कायदीन में मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव और दीगर मौजूद थे। किए 5 महीने 4000 किलोमीटर चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उन्होंने जो आवाज़ दिए, जो डायरेक्शन दिए, जो लोगों को भरोसा दिलाने का जो जिम्मेदारी उठाया, वही जिम्मेदारी लेकर हम हाथ से हाथ जोड़ो हर मोहल्ले में जा रहे हैं और गली में जा रहा है। तो इसीलिए अभी देश को बचाने का वक्त आ गया, क्योंकि देश खतरा में पड़ रहा है। इसीलिए और प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी, तेलंगाना हासिल कर लिए, मगर जो तेलंगाना के लिए जितना मेहनत किए, जो जितना लोग सोचा था वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो पूरा जिम्मेदारी जो तेलंगाना दिए सो कांग्रेस पार्टी अभी तेलंगाना को सुधारने का भी जिम्मेदारी हम लोग उठाने के लिए कोशिश करें। वही प्रोग्राम में हम लोग वरंगल में भी एक कार्यक्रम ले ली। केसीआर हुकूमत जो 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को देती हुई झूठे वादा करी थी, वो वादे अभी तक, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? मैं भाई केसीआर हर मज़हब को, हर जाति को ये धोखा ही दिए, उसमें मुसलमानों कोई हटके नहीं है। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर समझ रहे हैं मुसलमान लोगों को ऐसा भटका रहे, वो शेरवानी डाल के टोप लगा के रमज़ान को जिस दिन कुर्बानी खिलाए तो वो मुसलमान का बहुत ख़ास दोस्त समझ रहा है। मगर आज 9 साल में क्या किया आप सोचो एक बार। तो यहाँ पर आप समझ रहे कार को ओढ़ दे रहे, ये कार यहाँ से निकल के दिल्ली में मोदी के गली में घुस रहा है, तो कमल बन जा रहा है। 9 साल में ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जो भी लोग प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, किसानों के खिलाफ काला कानून जितने भी लाए, हर वक्त राज्यसभा लोकसभा में वो मोदी के साथ दिए। मोदी वो जुगलबंदी है, तो उनको अभी हमारे वही, इसीलिए हमारे भाइयों को मैं एक ही गुजारिश है, आप लोग समझ रहे हम केसीआर साहब को दे रहे, भाई केसीआर साहब एक कलेक्शन एजेंट है। अब पूरा वोट उनके दफ्तर उसके इसमें डाल रहे हैं, वो पूरा ले जाके दिल्ली में भेज दे रहा, मतलब वो कलेक्शन एजेंट है। तो इसीलिए मैं सीधा मोदी से जो लड़ेगा इस देश में वो पार्टी को वोट देना। नेशनल लेवल पे कांग्रेस को हराने वाले, भारतीय जनता पार्टी को रोकने वाले कोई पार्टी है नहीं। कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तदार पर आने के बाद आप क्या वादा करेंगे? माने जैसा कि आइंदा इंतखाबी इस साल ही इंतखाबात होने वाले हैं, तो आपकी तरफ से क्या रहेगा मुसलमानों के लिए? तो इसीलिए हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं, सबसे फीडबैक ले रहे हैं। हमारे शबीर भाई जो सीनियर नेतागण है, सब लोगों से बैठकर हम पूरा फीडबैक ले लेके, वो फीडबैक से हम माइनॉरिटी के लिए
स्पेशल मैनिफेस्टो हम निकालेंगे। हम जो करने वाले हैं राहुल जी को ले आकर हम ऐलान करवाएंगे। जैसा किसानों का डिक्लेरेशन हम वरंगल में किए थे, वैसे ही माइनॉरिटी डिक्लेरेशन एक्सक्लूसिव होगा, उसमें हम सब सारे दिखाएंगे आपको। आप जैसे खुसरो पाशा को जो जिम्मेदारी दी 119 कॉन्स्टिट्यूंसी फिरना, बल्कि बहुत अच्छी मुबारकबादी। ऐसे तेलंगाना में जो एक ऐसी शख्सियत को आपने जिम्मेदारी, क्या खुसरो पाशा साहब को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लेके जाने के लिए बराबर क्यों नहीं लेके जाते? इसीलिए मैं अध्यक्ष हूँ ना, मैं इसीलिए उनको गुजारिश की है, उनको पूरा तेलंगाना में पूरा हमारे साथ में लेकर जाएंगे। उनको भी जो भी असेंबली या काउंसिल जो भी पब्लिक फोरम है ना, उनके उसके अंदर ले जाने के कैसे ले जाना है हमें भी। शुक्रिया, बहुत बहुत। आदिलाबाद कांग्रेस जिला सदर साजिद खान ने कहा है कि कांग्रेस के इख्तियार में आने से ही अवाम के मसाइल हल होंगे। उन्होंने आज पीर को जिला मरकज में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इसके एक हिस्से के तौर पर KRK कॉलोनी में बड़े पैमाने पर दौरा करते हुए रास्त अवाम से मुलाकात की गई। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर अवाम से किए गए वादों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। इस प्रोग्राम में पार्टी के टाउन सदर नागेश, चरण गौड़, मुबारक, राहुल और లీడరాన్ मौजूद थे। సాయంలో గ్యాస్ సిలిండర్ ఏం రేట్ ఉండే, మరి వంట నూనె ఏం రేట్ ఉండే, ఇప్పుడు రేట్ ఏమున్నది? డబల్ ట్రిబల్ పెరిగింది. అయితే మీరు అయితే మీరు సాయం చేయండి. ఎమ్మెల్యేకి ఒక స్టిక్కర్ పెట్టాను ఇక్కడ కాంగ్రెస్ రైట్। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने चंद्रायगुट्टा पुलिस के साथ मिलकर फेक करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग और सर्कुलेशन के काम में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 27 लाख रुपए की फेक करेंसी नोट्स, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और दीगर अशिया जब्त कर ली। DCP क्राइम डॉक्टर शबारिश ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम led by Inspector Raghavendra and Chandrayagutta PS Inspector. They have apprehended 2 accused, Hassan bin Hamoud and Rameshwari, who are involved in printing and circulation of fake Indian currency notes. From their possession, we have seized 27 lakhs fake Indian currency notes, Lenovo laptop, Epson printer, HP printer, one, Ping DL laminator one green color paper roll, one spray paint bottle, one Kent paper cutter. This has been seized from their possession. For further investigation, we are handing over the accused and the seized material to Chandrayagutta PS for registration of FIR and further investigation. Thank you. पड़ोसी रियासत कर्नाटक के जिला बीदर के शहर बसवा कल्याण में वाक़ मदरसा दारुल उलूम इब्राहिमिया मोहल्ला शाह हुसैन के ज़ेर एहतमाम अजीम शान जलसा दस्तारबंदी हुफ़ाज़ किराम मुनक़्क़िद हुआ। मुफ़क्किर मिल्लत सदर जमियतुल उलमा महाराष्ट्र मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी की सदारत में मुनक़्क़िदा इस जलसे में नायब सदर जमियतुल उलमा कर्नाटक मौलाना मोहम्मद शरीफ मजहरी, सदर जमियतुल उलमा मराठवाड़ा मौलाना हबीबुर रहमान, नाज़िम मदरसा खासिमुल उलूम उदगीर मौलाना खारी शमसुल हक खुरैशी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए ईमान अफरोज़ खिताबात किए। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर बसवा कल्याण रमेश कोलार, तहसीलदार शांत गौड़, सरकारी ओहदेदारान समेत दरगाह हज़रत ताजुद्दीन बाबा शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन मौलाना ख्वाजा ज़ियाउल हसन जागीरदार, सैयद यसरब अली खादरी और दीगर उलमा इकराम शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर मेहमानान ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले 6 तलबा और सिर्फ 8 माह में मुकम्मल हिफ्ज़ की सादत हासिल करने वाली 8 साला तालिबा को इनामात और दुआओं से नवाजा। मौलाना अब्दुस्सलाम की सरपरस्ती में मुनक़्क़िदा इस जलसे की निगरानी मौलाना उस्मान अब्बासी ने की, जबकि नाज़िम मदरसा हाफिज़ मोहम्मद इमरान, सेक्रेटरी मौलाना खलीलुर रहमान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और ज़िम्मेदारान में हाफिज़ मोहम्मद अकबर अली, हाफिज़ खलील ने इंतज़ामात में ताउन किया। इस मौके पर ख़वातीन की शिरकत के लिए पर्दे का नज़्म किया गया था। बाकी है वो कुरान मजीद है जो सूरह फातिहा से सूरह नास तक 114 सूरत याद होती है और हुफ़ाज़ खड़े हो जाते हैं, मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, हजारों लोग पीछे होते हैं। एक वो भी छूट जाए तो एक जो उस्ताद अगर वो छोड़ दे
तो पीछे से शागिर्द उस्ताद को जो है लुकमा देता है कि जो है अल्लदीना जो है पढ़ा वल्लदीना को तो शागिर्द वल्लदीना कहता है। ये मौजूदा है कुरान मजीद का मेरे भाइयों। तो कुरान ज़ाब्ते हयात है, कुरान आब हयात है। ये ऐसी किताब अल्लाह ने और अपना कलाम अपने नबी आखिर ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। तो आपके इस बसो कल्याण में दारुल इब्राहिमिया में 6 तलबा ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, एक बच्ची हाफिज़ कुरान बनी। जो है कमर लिल बनात के अंदर भी जो है ख़वातीन के तालीम का निज़ाम है। मैं जो दिल की गहराइयों के साथ तमाम जो है इंतज़ामिया को, असातिज़ा को, मुअल्लिमात को, ख़वातीन को मुबारकबाद देता हूँ। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, गुजारिश जो है आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि आप ज़रा सा गौर फरमा लें और ज़रा सा आप खुद अपने ऊपर जो सोच लें कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, उसको ऊपर रखा जाता है, नीचे नहीं रखते हैं उसका, माशाअल्लाह। यहाँ तक के कुरान मजीद के लिए आदमी जो जुज़दान बनाता है, एक जो थान से एक आदमी अपना कुर्ता बना ले, पायजामा बना ले, उसी थान से जो कुरान का जुज़दान बनाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, बड़ा हो, जो बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, वो कुरान जिसमें रखा जाता है, जिसको जुज़दान कहते हैं, उसको कोई पैर नहीं लगाता है, उसकी कोई बेअदबी नहीं करता है। तो कुरान के साथ जो कुरान की जिल्द होती है, उसकी भी हिफाजत होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी पर जो कुरान नाजिल फरमाया, कुरान हिफ्ज़ करने के लिए भी है, नाज़िला पढ़ने के लिए भी है, तिलावत के लिए भी है, और उसके साथ उसका माना मतालिब के लिए भी है, उसको समझ कर भी पढ़ना है, उसके अहकामात को भी जानना है। तो इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए पूरे उसूल दिए गए और कुरान की अमली तफसीर मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये कुरान वो है जो औराफ में लिखा गया, सीने में महफूज है, और एक कुरान वो है चलता फिरता कुरान मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो मेरे भाइयों, 2 सिलसिले दुनिया में जारी फरमाया अल्लाह ने, एक किताबुल्लाह भी जारी फरमाया, रिजालुल्लाह का सिलसिला भी रहा। ये दोनों लाजिम है। कोई आदमी रिजालुल्लाह को छोड़कर सिर्फ कुरान की बात करेगा, वो गुमराह हो जाएगा, जहन्नम में जाएगा। और आदमी को कुरान के ऊपर से कुछ डाल दे और सिर्फ रिजालुल्लाह की बात करे, आदमी शिर्क और कुफ्र में, इल्हाद में, रसूमात में मुब्तला हो जाएगा। दोनों के लिए है, दोनों चीजें सामने रखनी चाहिए। इसलिए हमारे पास अहले सुन्नत वल जमात में बात है किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह, ये दोनों को जोड़नी चाहिए। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं बहनों से अर्ज करता हूँ, हमारी जिंदगी में जो तब्दीली लाए, हमारे घर जन्नत का नमूना बने। मर्दों से भी मेरी गुजारिश है, हम चाहते हैं तो जो है किताब। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद पेटला ब्रुच मैटरनिटी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन के इंसदाद जल्द पता लगाने से मुतालिक प्रोग्राम। वजीर सेहत हरीश राव की शिरकत, कहा अस्पतालों में जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफेसरों के 1400 ओहदों को किया जाएगा पूर्ण। तेलंगाना हुकूमत सरकारी अराजी के फरोख्त के जरिए हासिल करेगी आमदनी। हमडा के तहत 39 अराजियात फरोख्त के लिए दस्तयाब करवाई गई। याकुतपुरा रुकन असम्बली पाशा खादरी ने किया IS सदन प्रेस कॉलोनी का दौरा। कम्युनिटी हॉल के जारी तरक्याती कामों और कंटी वेलगू कैंप का किया मुआयना। GHMC कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6 महीने से जेरे इल्तिवा बिलों को फौरी जारी करने का मुतालबा। कांग्रेस की वरंगल में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। गाजीपेट दरगाह में चादर गुल पेश करने के बाद सदर रेवंत रेड्डी ने किया यात्रा का आगाज। हैदराबाद में जाली करेंसी नोट्स का रैकेट बेनकाब, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार, 27 लाख रुपए की फेक करेंसी नोट्स जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।